बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you my people, my family? Today we are going to upgrade from Oracle Apex 22.2 to Oracle Apex 23.1 with database 19c pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 22.2 को Oracle Apex 23.1 में तब्दील किया जाता है डेटाबेस 19c प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में। स्टॉप रनिंग प्रीवियस वर्जन ऑफ Oracle Apex which is Oracle Apex 22.2। तो पिछला वर्जन है हमारा Oracle Apex का, Oracle Apex 22.2, उसको हम बंद करेंगे। एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। Create folder in C drive with the name 22.2_23.1। C drive के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे 22.2_23.1 के नाम का। डाउनलोड Oracle Apex 23.1 थ्रू दिस लिंक। Oracle Apex 23.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 23.1 in 22.2_23.1 folder under C drive which we have just created. So we do not need to copy and paste Apex folder। Oracle Apex 23.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 22.2_23.1 के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें एपेक्स के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जावा 24.1 है। For ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से ORDS 25.1 तक के लिए हमें कम से कम Java 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। Open command prompt and reach where new version of Apex folder is available, which is Oracle Apex 23.1 under 22.2_23.1 folder। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहां जाएंगे जहां Apex का नए वर्जन का फोल्डर जो कि Oracle Apex 23.1 है वो मौजूद है, और वो मौजूद है 22.2_23.1 के फोल्डर के अंदर। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। कनेक्ट विद SSDVA, कनेक्ट हो जाएंगे SSDVA से। Run this command through PDBS। We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not. If we connect with pluggable database, we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first while running this command and then run Apex script। अब हम show PDBS की कमांड चलाएंगे। show PDBS की कमांड हम तमाम Apex के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि ये तसल्ली कर ले कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट है या नहीं है। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के। और ये कमांड चला के तो हम पहले प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के, और फिर एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम ये कमांड चला लें तो हम ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया पहले हमें 6 के यूजर से कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर हम ये कमांड चलाएंगे। And when we have run this command, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with the sys user first and then run. We make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command. Now create table database
Now create table space with the name Apex231. Here Apex231 is a table space name. You can define it from your choice. We name it after Oracle Apex 23.1. अब हम एक टेबल स्पेस बनाएंगे जिसका नाम हम Apex231 रखेंगे। ये जो है वो Oracle Apex 231 के नाम से, जो कि हमारा नया वर्जन है, उसके नाम से मुमासलत रखती है। dbf फाइल, dbf साइज, ऑटो एक्सटेंड, size 100 m, auto extend on next 1 am. Table space Apex231 is already exist, so first we have to drop this table space. Now we are repeating all the steps which is necessary. Here we change the dbf file name Apex23. So now our table space has created. अब हमारी table space जो है वो create हो गई है. Check previous version of Oracle Apex while running this command. Oracle Apex का हम पिछला वर्जन देख सकते हैं ये कमांड चला के.
एज Oracle Apex 22.2। ये Oracle Apex जो है वो 22.2 है। Now install Apex by running this command. Here we use Apex 231 instead of sysox because we create a table space with the name Apex 23.1 which is similar to our Oracle Apex, new version of Oracle Apex 23.1। अब हम ये कमांड चलाएंगे और यहाँ पे हम जो है वो Apex 231 को इस्तेमाल करेंगे sysox के बजाय, क्योंकि हमारी जो नई टेबल स्पेस है वो हमने Apex 231 के नाम से बनाई है, जो कि Oracle Apex 23.1 के नाम से मुमासलत रखती है, जो कि हमारा नया वर्जन है Oracle Apex का। Oracle Apex 23.1 has installed। Oracle Apex 23.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। एग्जिट कमांड फ्रॉम इस कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। Now come to this folder which is the previous version. Come to ORDS folder which is under 19C_22.2 folder and delete images folder from there। अब हम ORDS के फोल्डर के अंदर आएंगे जो कि 19C_22.2 के फोल्डर के अंदर है, जो कि पिछला वर्जन हमारा Oracle Apex का है, और यहाँ से इमेजेस के फोल्डर को डिलीट करेंगे which is the previous version of our Oracle Apex। Go to new version of Apex folder which is under 22.2_23.1, copy images folder from there। अब हम इस फोल्डर के अंदर आएंगे जो कि Oracle Apex का नया वर्जन का फोल्डर है। यहाँ से हम इमेजेस के फोल्डर को कॉपी करेंगे। यहाँ से हम इमेजेस के फोल्डर को कॉपी करेंगे और उसको हम चस्पा करेंगे एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, और इस पते पर उसको चस्पा करेंगे। Now open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder। अब हम command prompt खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहाँ जाएंगे जहाँ बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर, और वहाँ पहुँचने के बाद ये कमांड चलाएंगे and when we reach there run this command। Once Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex 23.1। जैसे ही Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 23.1 को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। Oracle Apex 23.1 है इंस्टॉल। Oracle Apex 23.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।